آج کا حوالہ متی کی انجیل 11 باب 20ویں آیت سے 30ویں آیت، نرم دل اور عاجز۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ تیرے حضور میں آئے، تیری عبادت کے لیے کلام کی بات غور کرنے کو ہے، سمجھنے میں مدد فرما تاکہ بخوبی جانتے ہوئے کلام کی بات کو اپنا سکے اور تیرا جلال ظاہر کرنے والے ہوں اور برکت حاصل ہو، یسوع کے نام میں۔ متی کی انجیل 11واں باب 20ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ متی کی انجیل 11واں باب 20ویں آیت سے، وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیتسیدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ تات اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور اے کفرناؤم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فرتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ آج کے حوالہ بتایا جا رہا ہے کہ خداوند نے اکثر جہاں معجزہ دکھایا وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ توبہ نہ کی۔ پھر کیا ہو؟ عدالت کے دن برداشت کرنا مشکل ہوگا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وجہ بتایا جا رہا ہے اس علاقے میں معجزہ ظاہر ہوا ہے، تو معجزہ کے ذریعے سے خداوند کا مقصد، معجزہ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ توبہ کرو۔ خداوند کا پیغام توبہ کرو، معجزہ توبہ کرو، شفا توبہ کرو۔ لیکن توبہ نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ افسوس ہے۔ خداوند فرما رہے ہیں افسوس ہے، تو توبہ کرے، نہیں تو افسوس ہے۔ وجہ عدالت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عدالت ہوگا۔
इंसाफ होगा। तो खुदावन आज के हवाले से हमें याद दिला रहे हैं, अपने काम पर गौर करें कि हर काम का हिसाब होगा, हर काम का हिसाब होगा। स्कूल में भी हिसाब होते हैं, सिखाया जितना सिखाया, टीचर ने मेहनत की और इम्तिहान देते हैं, इम्तिहान के ज़रिए से मेहनतों का नतीजा क्या है उसको हिसाब में आएगा। जिस क्लास को मैंने तालीम दी है और उसको अच्छे नंबर हासिल की तो क्या होगा, टीचर का इज्जत रहेगा। लेकिन आधा फेल हो गया तो टीचर का मेहनत का क्या हुआ, आधा जाया हो गया। इसलिए इम्तिहान सिर्फ बच्चों का नहीं, टीचर का भी इम्तिहान होता है। अच्छा तालीम दिया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, या ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, पता चलेगा। हर चीज़ का क्या होगा, हिसाब होगा। कलाम सुनाना, मौजा दिखाना, शिफा देना, बदरों को निकालना, यीशु का एक मकसद है, क्या है, तौबा करो, तौबा करो। तौबा नहीं की तो कह रहे अफसोस है, ठीक है। उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदाबंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ। क्यों? मौजा दिखाने के बाद भी कुछ काम होता है। क्या काम होता है? उसके जहन को खोलना। मौजा देखकर फैसला करना होता है, यह खुदा की तरफ से है या नहीं, ठीक है। खुदा की तरफ से है तो क्या होगा, खुदा की तरफ तवज्जो होगा, खुदा की तरफ तवज्जो होगा तो फिर क्या होगा, तौबा करेगा। लेकिन तौबा ना करने का एक बहाना है। क्या बहाना है? मौजा देखा, बदरुओं को निकाला, तो उन्होंने क्या बोला, ये तो बदरुओं का सरदार बालज़ेबूल के मदद से बदरुओं को निकालना है। यीशु की खिदमत, इलानिया खिदमत, बदरुओं को निकालने का काम देखकर उसका कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उन्होंने फैसला कर दिया, बदरुओं का सरदार बालज़ेबूल के मदद से बदरुओं को निकालना, ठीक है। तो खुदावंद क्या फरमा रहे हैं, हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया, ऐसा ही तुझे पसंद आया, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उससे जाहिर करना चाहे। यीशु ने मौजा दिखाकर जाहिर करना चाहे तो उसको समझ आए। सब देख रहे हैं, दुनिया में होने वाले सब वाक़या को देख रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने वाला, जांचने वाला मुख्तलिफ नतीजा निकालते हैं। क्यों? उनके अपने अक्ल से सोच रहे हैं। अगर वो खुदाबंद के मदद से सोचेगा तो उसका फैसला अच्छा हो। अच्छा का मतलब सही हो, ठीक है ना। अभी फैसला करना है, फैसला करना है। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते हुए खुदाबंद की तरफ से दिए गए हुनर, नेमत मुझ पर क्या है। किसी को मैथ्स में तेज है, किसी को मैथ्स तो समझ ही नहीं आता, लेकिन अंग्रेजी याद करके अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छी बात, मतलब अच्छा है। मतलब है खुदावंद किसी को मैथ्स में, किसी को अंग्रेजी में, किसी को सोशल वर्क में, तो हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। फिर जिस चीज़ को पसंद है और अच्छे नतीजा आ रहा है तो उसकी तरफ खुदावंद के नाम नेमत है
تو اس کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یامی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ تو انہوں نے وہ سائنس پڑھی ہے نرسنگ کرنے کے لیے، بعد میں سوچا نرسنگ میرے لیے اچھی نہیں، سب کہہ رہے ہیں نا بولی نرسنگ کرو، کیوں؟ وہ کم از کم 50,000 سے شروع ہوتا ہے تنخواہ، ہاں ٹیچر مشکل سے 10,000 سے شروع ہوتا ہے، ہاں کہاں 10,000 کہاں 50,000، اس لیے کہہ رہا ہے بھائی نرسنگ کرو، بی این ایس کرو، یہ کرو، اس کا ہنر ہے یا ہے یہ نہیں دیکھتا، ہاں وہ اس کو فلومینا کو وہ دینتسٹ بننے کے لیے داخلہ مل گیا ہے، جہاں کیمپ جاتا ہے اسکیلنگ کرنے کے منہ کھولنا، اس کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تو الٹیاں آنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے شروع میں، کرتے کرتے ابھی 2 سال ہو گیا نا، ابھی وہ خود اسکیلنگ کر رہے ہیں اس کو، ہاں ایسے حالت کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے MBBS منا بھائی MBBS میں داخل ہو گیا، وہ اس کو پرنسپل کو بہت تنگ کرتا ہے، تو پرنسپل صاحب نے وہ لاش لے کر آیا، اس کو یہ نام نہیں آ رہا، اس کو جو مردہ کو جو ہے نا پوسٹ مارٹم کرنے کا بولا، وہ میس گرا دیا، کانپنے لگ گیا دیکھو ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے بھی وہ مزہ آتا ہے، ہاں ہر چیز خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے، معجزہ کو دیکھ کر سمجھنا، توبہ کرنا خدا بن کی مہربانی، سب دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھنا، دیکھنا صبح بائبل پڑھتے ہیں اور بائبل پڑھ کے نا سوال کرتا ہے، ایسے طنز میں سوال کرتے ہیں، اس کا عقل ہی بائبل پڑھتے ہیں اس طنز سے نہیں آتا ہے، ایسا کیسا طنز میں آتا ہے، افسوس ہوتا ہے یار، بچپن سے مسیح خاندان میں پیدا ہوا اور بائبل پڑھتے ہیں، اس کو ہمیشہ طنز میں ہی بات کرتا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند ہمیں مدد کرے۔ آج فرما رہے بیٹا جس کو ظاہر کرنا چاہے اس کو سمجھ آئے گا، خداوند کا یہی طریقہ کار ہے، اس لیے کیا ہے، سب سے پہلے مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، دل کے غریب ہے تو کیا ہوگا، سیکھنے کے لیے اس کا آنکھ کھلے گا، غرور ہوگا، ہے پادری اس کو کیا آتا، کچھ نہیں آتا، پادری میسج دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن غرور ہے تو پادری جو کچھ بولے کہاں تک پہنچے گا نہیں، وہ پہلے سے دل سے اس کو نکال دیا، ایسا آتا کچھ نہیں، دل کے غریب ہوگا، سننے کے لیے تیار ہے، آج کیا سیکھوں، وہ دل چھونے والا خدا ہے، اور یسوع کہہ رہا ہے یہ ایسا خدا کو پسند آیا، اور پھر کیا کہ فرما رہے ہیں میرے پاس آؤ، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، سیکھنے کے لیے کیا کرو، جوا اٹھا لو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے بیل ہال چلانے کے لیے اس کو ٹریننگ دیا جاتا ہے، سمجھے، بیل کو ہال چلانے کے لیے، ہال جوتنے کے لیے ٹریننگ دینا ہوتا ہے، بیل اچانک ہال چلانا شروع ہوئے گا، کبھی ایسا نہیں ہے، ٹریننگ دینا پڑتا ہے، پھر ٹریننگ دینے سے پہلے کیا کرنا ہوگا، اس کو پکڑنے کے لیے، کپ میں رکھنے کے لیے ناک کو سوراخ کرے، ٹھیک ہے، پھر اس کو کیا بولتا ہے، ناک کو سوراخ کر کے اس کو جو
कोरिया में बांस रहता है, बांस का जड़ होता है, वो बहुत सख्त होता है, मतलब वो टूटेगा नहीं, बांस का जड़ टूटेगा नहीं। वो जड़ को करके ना वो उसमें आर पार करे, नाक को आर पार करे, फिर उसको बांधेगा, ठीक है, पीछे से रस्सी से खींचेगा, चलो खड़े हो जाओ, इधर मोड़ो, ठीक है, वो ट्रेनिंग देता है। तो इसको करके जो ऊपर रखेगा और पीछे इतना वजन वाला पत्थर रखेगा, पत्थर को रख के उसको बोलता है चलो, फिर वो वजन उठा के खींच के जाना सिखाना। कह रहा है खुदाबंद इस तरह खेत में सिखा रहे हो, उस तरह कह रहे जुआ उठा लो मेरा, आपको सिखा दो, आसान होगा। ये कह रहे मुझसे सीखो, कहने का मतलब है मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। हाँ, ट्रेनिंग देने वाला, आपने अमेरिकन वो मूवी देखा है, उधर जब गोरा को ट्रेनिंग देता, गोरा भी आसानी से सवार नहीं बनता, गोरा को उस पर सवार बनाने के लिए नंगा गोरा उसको पकड़ना पड़ेगा ना, पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। गोरा कितना कोशिश करेगा नीचे गिराने के लिए, गिरते गिरते आखिर तक कामयाब होगा, फिर वो काबू में आएगा, फिर वो ऊपर चिन कसेगा, फिर उसके ऊपर आराम से बैठेगा, फिर वो सवारी वो गोरा हो जाएगा, ठीक है। रथ वाला, सवार वाला, हर चीज़ ट्रेनिंग देना होता है, और ट्रेनिंग देकर काम कराने के लिए जुआ उसके ऊपर रखते हैं। खुदावंद कह रहा है मुझसे सीखो। मुझसे सीखने के लिए क्या है, जो बेल को ट्रेनिंग देता है उसी वक्त रखने वाले जुए को रखो, मेरा रखो। क्यों? कुछ सख्त आदमी होगा। पाकिस्तान में बेल इतना नज़र नहीं आता, खदा नज़र आता है ना, खदा। वो खदा गाड़ी चलाने वाला क्या करता है, जख्म करता है, एक जगह तंग करता है, एक जगह धंधा लेके जल्दी भागो, एक जगह तंग करके वो जख्म कर देता है। वो जख्म जगह जो है उसको टच करेगा, वो तेज भागेगा। और क्लिफ्टन में जुमेरात को गधा गाड़ी का रेस होता है, पता नहीं अभी है या नहीं है, पहले होता था। जुमेरात को गधा गाड़ी का रेस होता है, और वो 3 डब्बे के अंदर पत्थर रखा, ऐसे घुमाएगा, आवाज करेगा, फिर गधा गाड़ी भागेगा। रेस होता है, वो दरखोप होता है ना, तो देखो इतना सख्त आदमी, एक जगह जख्म कर के वो छोटा सा धंधा लिया, जल्दी भागना है, तेज भागना है, उसको जाके टच करते हैं, फिर वो तेज भागना शुरू हो जाता है ना। यीशु से सीखो, क्यों? ऐसा सख्त आदमी नहीं होगा, जख्म करके तंग करने वाला नहीं होगा, मुलायम। खुदाबंद चाहते हैं हर काम क्या करो, तौबा करो, तौबा करो। तौबा से मुराद क्या है? अपनी मर्जी चाहते थे, अपने मन मर्जी करते थे, अभी क्या खुदा की मर्जी को अपनाना है। तौबा का मतलब यही होता है। वे बुराइयां करता था, बुराइयां छोड़ दिया, नहीं, वो भी बात है, लेकिन क्या है, अभी मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करूँ। क्योंकि अक्सर मैं कोशिश करता हूँ शरीयत के मुताबिक एलिया को कावे लाए हुए
खुराक खाना जायज़ नहीं है। कावे लेकर आता, कोई भी लाए वो नापाक है, मतलब वो हराम है, हलाल चीज़ नहीं है, वो खाया क्यों? खुदाबंद का इंतजार, समझे? खुदा ने जो मुकर्रर किया मैं वो काम करूं या मैं शरीयत को सामने रख के रद्द करूं? समझ में आ रहा? एलिया को बोलना गैर कौम के इलाके में बेवा के पास जाओ। यीशु गैर कौम के पास जाता है, ठीक है, और गैर कौम सामरी औरत से पानी मांग रहे, वो उल्टा जवाब दे रहे, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से बात करता है। समझे? खुदाबंद की खिदमत में रवायत कभी रुकावट पैदा करेगा, शरीयत कोई रुकावट पैदा करेगा, लेकिन खुदा का बंदा जो बाइबल में नज़र आता है, खुदाबंद के हुक्म कभी कभी शरीयत को तोड़ना पड़ता है, तोड़ा जाता है, लेकिन उस पर अमल करना होता है, ठीक है। तौबा से मुराद क्या है? अपनी मन मर्जी करने के काम छोड़ के खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। और ऐसे काम के लिए क्या करता है? हाँ, खुदा हमारे साथ है, कलाम के ज़रिए से, मौजा के ज़रिए से, शिफा के ज़रिए से, बदरू को निकालने के ज़रिए से, मुर्दों को जिंदा करने के ज़रिए से करके दिखाया खुदा मेरे साथ है। और जो मैं खुदा की बात को अमल में लाता हूँ उसी तरह तुम भी करो, ठीक है। ईमान में ज़िंदगी बसर करना यही मतलब होता है, नरम दिल और आजिज़। यीशु में तौबा और आराम। जब यीशु उन शहरों के मुसलसल गुनाह के बारे में बात करता है जिनका वो दौरा करता है, वो दिलेरी से तौबा ना करने वाले गुनाहगारों पर खुदा के नागुज़री फैसला का ऐलान करता है। उनका पैगाम क़यामत के बारे में और खौफनाक है। यीशु बाप की तारीफ भी करता है और खुदा के साथ अपने बेटे के ताल्लुक़ की तस्दीक करता है। खुदा के लोगों को बाप और बेटे को जानने का मौका हासिल है। यीशु सबको जो थके और बोझ से दबे हैं अपनी तरफ आने और सीखने की दावत देता है, क्योंकि उसका दिल नरम और आजिज़ है। हम सब कभी ना कभी थके और बोझल हो सकते हैं, लेकिन जब हम यीशु के पास जाते हैं हमें यकीन होता है कि हमारी जानों को आराम मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि यीशु हमें अपने आमद में मदाव करेगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हम उनकी मोहब्बत भरी दावत को कबूल करेंगे। आपको क्या चीज़ थकावट का और बोझलपन महसूस करवाती है? किस भी गुनाह से तौबा करें और यीशु में अपनी जान के लिए आराम पाएं। साथ दुआ करें इतवार के लिए सिफारिश करने के लिए, शिफायत के लिए ऑस्ट्रेलिया दारुल हुकूमत कैनबरा, आबादी कितना है? 2,67,68,598। अहम मज़हब गैर मजहबी 38.4%, रोमन कैथोलिक 20%, प्रोटेस्टेंट 18.1%, 1%। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा
बड़ा अजब बहरे पैसिफिक और बहरे हिंद के दरमियान वाक़या है। यहाँ के मखसूस नबातात और हैवानात और ग्रेट बैरियर रीफ सबसे मशहूर सियाहती मुकामात में से हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी इंतहाई मतनू है और उसके मजहबी मनाजर मुख्तलिफ पस मंज़र की अक्कासी करते हैं। ताहम माशरा ज़्यादा सेकुलर होता जा रहा है और बहुत से लोग चर्च को मनफी नज़र से देखते हैं। उसके अलावा ईमान के अहम मसाइल पर मानने वालों में इख्तलाफात भी मौजूद हैं। दुआ करें कि रूह कुदस ईमान वालों को सच्चाई समझने और इत्तेहाद बहाल करने में मदद करे। खुदा की हम्द करें कि उसके लोगों को मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वालों तक पहुँचने का मौका मिला है। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के इस मौका के लिए। तूने हम सबों को छुआ है, सच्चाई को पहचानने के लिए बरकत दी है, तौबा के नौबत तक पहुँचने के लिए बरकत दी है। खुदाबंद हमें तौफीक दे हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदाबंद की हर एक बात को समझने वाले, अपनाने वाले बन जाए और जब गलतियाँ खामियाँ सरजद होते हैं तो फ़ौरन तौबा करके तौबा के नौबत तक पहुँचते हुए रूह और सच्चाई से मामूल अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए बरकत दे। और खुदाबंद ऑस्ट्रेलिया के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदाबंद उस मुल्क में खुदा की पाम वर्ष के मुताबिक बुनियादी करने वाले और बना दे, खड़ा कर दे और खुदाबंद लोगों में नसीहत को अपनाने में मदद फरमा, ताकि सच्चाई की तरफ आगे बढ़े और खुदा का जलाल शायर करने वाले तेरे लोग मुल्क बन जाए। यीशु के नाम में। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर, हम भी अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश से ना पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तब कराई है। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, निफाक और हिफाजत अब सबों के साथ और ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।